Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo 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 bolo. साधु जल से बोलो. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone together, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, a little louder with your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, one more time, a little louder, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamiliti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapad Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Hare Krishna.
तो श्रीमद् भगवत गीता के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 22 से 29 श्लोक तक, 22 से 29 तक हम आज बात करेंगे। 1 to 22 to 29। लेकिन उससे पहले 20 और 21वें श्लोक पे थोड़ा रिकेप करते हैं, ताकि हमें हमारी लिंक बनी रहे, हमें पता रहे। हम जैसे कि हम जानते हैं कि शौनक ऋषिगण द्वारा जो 6 प्रश्न किए थे, उसमें 2 प्रश्न के उत्तर के जवाब में ये श्लोक चल रहा है। 119 और 1111 उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। 119 में पूछा गया था कि व्हाट इज अल्टीमेट गुड, सबसे श्रेष्ठ चीज, श्रेय क्या है मनुष्य के लिए। और 1111 में पूछा गया था सभी शास्त्रों का सार क्या है। 119 और 11 में 2 प्रश्न थे, उसके जवाब के अंतर्गत ये सब बातें चल रही है। अभी सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, शौनक ऋषिगण को बता रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि पीछे 21 और 22वें श्लोक में सुत गोस्वामी बता रहे थे, इस प्रकार हृदय की गांठ भीग जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सत्व, रजो और तमोगुण से ऊपर उठने की बात है, और न सिर्फ ऊपर उठने की, और हमारी कर्म की श्रृंखला वो बीत जाती है। कैसे? जब आत्मा के प्रति हम जागृत हो जाते हैं। जब हम आत्मा के प्रति जागृत हो जाते हैं तब ऑटोमेटिक कर्म की श्रृंखला कट जाती है। यहाँ पे बताया है कि इस प्रकार हृदय की गांठ भीग जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, आंसर्ड। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, आत्मा को स्वामी के रूप में, यानी कि शरीर का जो स्वामी है वो आत्मा है, और आत्मा का जो स्वामी है वो परमात्मा भगवान स्वयं है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। सकाम कर्म का मतलब है बॉडी कॉन्शियस से बाहर आते हैं और सोल कॉन्शियस, आत्म साक्षात्कार की ओर चलते हैं। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया बुधा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनीम। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। अभी देखिए सुत गोस्वामी जो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब के अंदर कई बातें संलग्न किया है। सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर आप यज्ञ से आपका मन अलग अलग आध्यात्मिक प्रवृत्ति में विचरता है, आप यज्ञ करते हैं, आप ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं, आप तप करते हैं, आप दान करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, ये सभी आध्यात्मिक भक्ति के कार्य से भी श्रेष्ठ क्या चीज है, तो वो बता रहे हैं। इसमें बताया है कि भगवान के अलग अलग रूपों में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है। तो वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है, उसकी बात यहाँ पे बताई है। आगे हम देखते हैं कि कैसे बताया गया है, कौन से दृष्टिकोण से सुत गोस्वामी समझा रहे हैं, ताकि हर प्रकार की मानसिक वृत्ति वाले मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हृदय में विदाउट डाउट, विदाउट एनी संशय स्थापित कर सके। तो आगे का श्लोक है, सत्वं रजस्तमं इति प्रकृते गुणास्ते युक्ता परा पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थिति आदये हरि विरचित हर इति संज्ञा
श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनो नृणाम स्युः। अनुवाद, दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीन रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परम लाभ यानी कि व्हाट इज अल्टीमेट गुड, तो भगवान विष्णु के द्वारा। तो पहले तो बताया गया कि वासुदेव भगवती, वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति, तो वो एक सीधा जवाब दिया सुत गोस्वामी के द्वारा। अभी संसार में कई लोग ऐसा समझे कि भाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो भगवान है, तो उनका कार्य क्या है, तो उनके बारे में भी बताया कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर तमोगुण से ऊपर रजोगुण है और रजोगुण से ऊपर सत्वगुण है, और रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण के अधिष्ठाता महेश भगवान शिव जी हैं। तो सत्वगुण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं जो जीवों के पालन पोषण करता है। तो ये तीन कई बार अलग अलग मान्यता से जीव आते हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो उनका भी खुलासा कर रहे हैं सुत गोस्वामी कि ये भी प्रकृति के इनडायरेक्टली ये प्रकृति के तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके अंदर प्रवेश करके भी भगवान ये तीन रूप में से जीवों के कल्याण कर रहे हैं। लेकिन उसमें भगवान विष्णु, वासुदेव विष्णु भगवान वो सर्वस्व है, वो परम है, वो परम लाभ प्राप्त करने वाले हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, पहले जैसा यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। अभी आप आगे देखेंगे कि भगवान न सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात कर रहे हैं सुत गोस्वामी, लेकिन और भी आगे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि देवी देवता में भी महान कौन है, तो वो भी आगे आएगा। तो आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व है। विष्णु ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओरिजिनल तत्व भगवान विष्णु तत्व है। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है, बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण और नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार प्राकट्य होता है। बहुत स्पष्टतया बताया गया कि महाविष्णु भगवान कृष्ण से आते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सुप्रीमसी भी प्रभुपाद जी हासिल करके समझा रहे हैं कि ओरिजिनल तत्व कौन है। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह यानी कि भगवान विष्णु इस जगत के, भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक्षय विष्णु या परमात्मा नाम से जाने वाले जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीन गुणों का विभाग अध्यक्ष है। विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्व गुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। अभिन्न रूप भगवान विष्णु कहलाते हैं और भिन्न रूप जो है वो जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों एक ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव अणु है, भगवान विभु है।
जीव एक अंश है, भगवान समग्र अग्नि है। जीव तथा ईश्वर दोनों के अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं, और इस तरह वे प्रकृति के गुणों में फंस जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं लॉर्ड इट ओवर मटीरियल नेचर। जब हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जीव को बांध लेते हैं और जीव को अपने कर्म में फंसा देते हैं। कर्म करने के लिए चला जाता है, क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। तो पूर्ण स्वतंत्रता का अंश होने के नाते जीव भी स्वतंत्र होने की चेष्टा करता है, लेकिन उनकी क्षमता कितनी है, क्योंकि वो फ्रैगमेंट पार्ट है, वो एक तिनखा के बराबर है। तो एक अग्नि के सामने एक तिनखा की क्या हैसियत, तो वो तिनखा के बराबर में जो अपनी अस्तित्व है जीव की, उसमें वो स्वतंत्र होना चाहता है। तो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। तो जब वो नहीं कर पाता, तब वो कर्म बंधन से, प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत का बंदी गुरु भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है, और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहां तक इस बंदी गुरु की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस प्रकार राज्य सत्ता द्वारा बंदी गुरु की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी गुरु से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु अल्टीमेट जीव का श्रेयकर है। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भवरूपी बंदी गुरु जीवन को चालू रखना चाहता है, तो यह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख, क्या बताया, क्षणिक सुख के लिए तत्व संबंधी सुविधाओं की याचना करता है। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता है, केवल विष्णु ही इसे छुड़ा सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सुत गोस्वामी जो हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली प्रकृति के 3 गुणों की बात कर ली, प्रकृति के 3 गुणों में जीव कैसे फंसता है, और साथ साथ प्रकृति के 3 गुणों के जो अधिष्ठाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनमें श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान विष्णु है। लेकिन भगवान विष्णु कहाँ से आए, तो भगवान श्री कृष्ण से आए। ये भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझा दिया। तो एक ऐसी मान्यता वाले पुरुष जो है कि भगवान विष्णु सर्वस्व है, उनके लिए ये जवाब था। अभी आगे सुत गोस्वामी आगे चल रहे हैं। पार्थिवा दारुणो धूमस तस्मात् अग्नि त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तमस सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। अग्नि काष्ठ मुदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि से उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से, वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, और लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। जैसे पृथ्वी भूमि देवी से काष्ठ यानी कि लकड़ी प्रकट होती है, तो भूमि देवी का तत्व है लकड़ी के अंदर, लेकिन वो लकड़ी के अंदर अग्नि समाया हुआ है। तो वो लकड़ी के अंदर अग्नि समाया हुआ है, तो
जब अग्नि प्रकट करते हैं तो सबसे पहले धुआं निकलता है। तो लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं है, लेकिन धुआं से श्रेष्ठ अग्नि है। जो उनका तत्व है, जो लकड़ी के अंदर जो तत्व समाया हुआ है वो अग्नि है। और अग्नि सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है कि यज्ञ द्वारा, आहुति द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये एक एग्जाम्पल के रूप में सुत गोस्वामी शौनक ऋषि गण को बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल कि कैसे तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्व गुण है। तो ये एक एग्जाम्पल प्रदर्शित किया गया है कि लकड़ी में अग्नि होते हुए भी अग्नि जब स्वयं प्रकट हो जाती है तो वो तत्व कहलाती है। तो यहाँ पे जो इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि भगवान विष्णु की जो संज्ञा है, भगवान विष्णु का पोजीशन है, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। सत्वावलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्व, तो वो विशुद्ध सत्व में स्थापित हो सकता है। इसलिए पहले हमें तमोगुण रजोगुण से अपनी साधना से उठना चाहिए, और साधना से उठकर हमें सत्वगुण में स्थापित अपने आप को करना चाहिए। और सत्वगुण में स्थापित करके हमारी साधना चलती रहेगी, तब धीरे 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 हमारी मनोदशा के द्वारा, हमारे आध्यात्मिक साधु गुरु शास्त्र के द्वारा और भगवान की अनुकंपा के द्वारा हम विशुद्ध सत्व में प्रवेश कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं, भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अभी सुत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? पहले तो बताइए कि हमें सत्वगुण में स्थापित होने से हमारी जो कर्म की श्रृंखला है कट जाती है। कर्म की श्रृंखला कटने से हम हमारा संशय दूर हो जाता है और हम शुद्ध सत्व में प्रस्थापित होते हैं। लेकिन उसके बाद एक तर्क रजू किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठाता देव, उसमें भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, ये बात बताई। लेकिन आने वाले लोग कहेंगे कि ये तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? हम कैसे जान लें कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मा और शिव से? तो इसका प्रमाण कहाँ से लाएंगे? तो सुत गोस्वामी वो प्रमाण दे रहे हैं। वो प्रमाण कहाँ से दे रहे हैं? एवं परंपरा प्राप्तम। बोलते हैं कि पहले जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि गण थे उन्होंने ये बताया है। यानी कि उनकी जो दृष्टि है, उनका जो केंद्र बिंदु है, वो शुकदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। और पहले के जो परंपरा में पहले के ऋषि मुनि गण थे उनके बारे में निर्देश कह रहे हैं कि ये ऐसे परिपक्व अवस्था में जिन्होंने तत्व का दर्शन किया था, जिन्होंने अपने आप को भगवान को प्राप्त किया था, ऐसे ऋषि मुनि गण का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? कि पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, भगवान श्री कृष्ण विष्णु की, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से पर है। भगवान को निर्गुण कहा जाता है या गुणातीत कहा जाता है। निर्गुण यानी कि सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण से परे हैं, इसलिए निर्गुण कहा जाता है। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। देखिए यहाँ पे पूजा का हेतु बताया गया। हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा का हेतु क्या होना चाहिए? कि जीव का उद्धार होना चाहिए। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए और परंपरा से प्राप्त जो नारदीय पंचरात्र की विधि मिली है उसके अनुलक्ष्य में हमें भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए।
साथ साथ शास्त्रों का पठन करना चाहिए। और जब शास्त्रों का पठन करते हैं तो आज के ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं, तो इस श्लोक के अंदर कितना गहरा तत्व छुपा हुआ है। आज के इस श्लोक में अभी भेजिरे मुनयोत्थाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानि। तो इसके अंदर सबसे बड़ा तत्व छुपा है। आप कहेंगे कैसे प्रभु जी बता रहे, इसमें तत्व क्या है? तो देखिए, जैसे पृथ्वी में से अग्नि लकड़ी पैदा किया, लकड़ी में से धुआं पैदा किया, धुआं में से अग्नि पैदा किया, तो अग्नि सत्व गुण का प्रतीक है। उसमें भगवान विष्णु की सर्वश्रेष्ठता स्थापित की। इसके साथ साथ ये स्थापित करने वाले प्रमाण, जो यूनिवर्सिटी जैसे प्रमाण करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसे ये भगवान के बारे में ये अनुभव रूपी प्रमाण जो ऋषि मुनि गण ने प्राप्त किया। अनुभव, ऋषि मुनियों ने अपना अनुभव रजू किया, और वो अनुभव में क्या था कि भगवान विष्णु की पूजा की थी। और किसके लिए की थी? जीव के उद्धार के लिए, भौतिक जगत के संसर्ग से छूटकर आध्यात्मिक जगत की यात्रा में भगवान की सेवा में लगने के लिए। तो जब तक हमारी भक्ति, इसके इस श्लोक के अंदर एक बहुत बड़ा तत्व छुपा है कि जब तक हमारी भक्ति वो तत्व के प्रति, यानी वो हेतु के प्रति मन के अंदर स्थापित नहीं हो जाती कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटकर भगवान की शुद्ध सेवा में लगना है, ऐसे भाव से जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक हम कोई विषय पर भगवान की भक्ति करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, अपनी मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए सकाम भक्ति में लगते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति ये क्या है कि हमारी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना। तो आज हम इस श्रीमद् भागवत में, ओरिजिनल भागवत जो है वेद व्यास जी है, बाद में सुखदेव गोस्वामी है, बाद में सुत गोस्वामी है, और ऋषि मुनि गण का एसोसिएशन में हम बैठे हैं, और उसके साथ साथ प्रभुपाद जी के एसोसिएशन में है, उसके साथ साथ हम गुरु महाराज के एसोसिएशन में है। और ऐसे तात्पर्य से हम श्रीमद् भागवत को समझ रहे हैं, और वो प्रभुपाद जी हमें ले चल, इस अनुवाद में के द्वारा हमें कहाँ ले चलते हैं कि उन ऋषि मुनि गणों कि जिन्होंने अपने भौतिक जीवन का ध्येय आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए किया। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, यहाँ पे अनुसरण किया बताया गया है, अनुकरण नहीं। अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लाइंड फेथ हो सकता है, और अनुकरण से हम बाह्य दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं। अनुसरण का मतलब है उन्होंने उसका हेतु, जो ऋषि मुनि गण का जो हेतु था, वो हेतु के द्वारा हम भगवान की पूजा करें। ऐसा नहीं कि उन्होंने किया, उन्होंने ऐसा पोस्चर किया तो हमने ऐसा पोस्चर किया, उन्होंने उत्तर दिशा तरफ मुंह किया तो हमने उत्तर दिशा तरफ मुंह किया, ये सब बाह्य है। लेकिन हेतु क्या है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो भगवत प्राप्ति के लिए। तो जो भगवान की प्राप्ति के लिए किया, वो हेतु को अनुसरण करना, हेतु के अनुसार चलना, उसको कहते हैं अनुसरण। तो अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यानी कि हमारे जीवन का लक्ष्य, हम श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं तो हमारा श्रीमद् भागवत को पढ़ना यानी कि भौतिक जगत के संसर्ग से मुक्ति पाना, जैसे परीक्षित महाराज ने पाई, तो ठीक वैसे ही भौतिक जगत के संसर्ग से मुक्ति की ओर चलना। और वो कैसे? वो एक एक श्लोक के द्वारा प्रमाणभूत होते करते करते सुत गोस्वामी हमें आगे ले जा रहे हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती यो न सूयवः। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं। द्वेष रहित और सबका सम्मान। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं।
यानी कि जैसे भगवत गीता 7वें अध्याय 20 से 24 श्लोक के अंदर बताया गया है कि जो देवी देवता को भजते हैं वो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, वो जीवन का श्रेय, परम श्रेय के पीछे जागृत नहीं हुए हैं। जो अल्प बुद्धि वाले जन हैं, उनके जो देवी देवता के घोर स्वरूप है, उनको वो भजते नहीं है। साथ साथ इनका अनादर भी नहीं करते, यानी कि उनको क्या करते हैं कि उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन उनको आदर सम्मान तो जरूर देते हैं। तो सभी भगवान और देवी देवता के रूप को आदर देते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ भगवान विष्णु की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की जाती है। तो ये बताया कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, जो मोक्ष के प्रति गंभीर है, उनको देवी देवता की पूजा के बदले भगवान विष्णु या कृष्ण की सेवा पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस श्लोक में सुत गोस्वामी और क्लियर कर रहे हैं कि पहले तो बताया कि कोई कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु है सर्वश्रेष्ठ, उसमें भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ, और सत्व गुण में विष्णु है तो वो है। तो उसके आगे जाके कई लोग ऐसा कहेंगे कि कोई देवी देवता का मैं देवादिदेव महादेव को मानता हूँ, या तो कोई देवी देवता को मानता हूँ। तो यहाँ पे बताया है कि कोई भी देवी देवता के स्वरूप को हम आदर करना है, हमें सम्मान करना है, उनके ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखना है। हमें देवी देवता से कभी भी कोई भी जीव से द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखना है, बल्कि उनका आदर सम्मान करके भगवान विष्णु और कृष्ण का आराध्य या पूजा चालू रखना है। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके, यानी कि अस्वीकार का मतलब यहाँ इसलिए बताया कि उनको भजना नहीं है, देवी देवता को भजना नहीं है। अगर देवी देवता को भजेंगे तो हमारा जीवन का परम श्रेय जो है जीवन मुक्ति, भगवान की सेवा में लगना, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चलते रहेंगे। गीता में भगवान इसलिए कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य, मेरी शरण में आता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी ये भी डाउट क्लियर करके जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की जो सुप्रीमसी है उसकी ओर हमें धीरे धीरे ले जा रहे हैं। रजस्तम प्रकृतय समशिला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादि ये ऐश्वर्य प्रजेप्सवा। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी है वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी है, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा प्रेरित करते हैं। यहाँ पे रजोगुण और तमोगुण के जो अभिलाषी है वो व्यक्ति भी तंत्र यानी कि देवी देवता को मानते हैं, साथ साथ पितरों को भजते हैं। तो ये भी अल्प बुद्धि वाले लोग हैं और वो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ऐसे लोग भी नहीं। तो जो हमारे मन के अंदर कोई भी संशय न रह जाए कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, तो सुत गोस्वामी हर संशय को काट रहे हैं। सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो रजोगुणी और तमोगुणी जो लोग हैं वो पितरों को और पितृलोक को और देवी देवता को ही पूजा करते हैं, लेकिन जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी है, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, तो वो भौतिक लाभ है। तो भौतिक लाभ के प्रति वो हासिल करने में लगे हैं, यानी कि परम श्रेय के पीछे नहीं लगे हैं। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं तब हम रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, और शुद्ध सत्व में, विशुद्ध सत्व में परम श्रेय की बात करें तो हम भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम देवी देवता का अनादर करें। उनको अस्वीकार करने का मतलब है उनको भजना नहीं है, लेकिन उनके प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखना है। अगर देवी देवता के प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखेंगे तो भी भगवान विष्णु या कृष्ण
हमारे पर प्रसन्न नहीं होंगे। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। यानी कि अनफ्लिंचिंग फेथ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को स्थापित किया है। अभी किसने? सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषि को बताया। अभी क्या बताया कि जीवन का परम श्रेय क्या है, जो 1:9 पहला स्कंद पहला अध्याय 9वें श्लोक में जो प्रश्न किया था कि जीवन का परम श्रेय क्या है, और परम श्रेय के बाद दूसरा प्रश्न किया था 11वें श्लोक में कि सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तो इसका जवाब यहाँ पे समाप्त हो रहा है पहले 2 प्रश्न का, कि अल्टीमेट भगवान श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव परा वेदा, वो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः। अगर जो सर्वश्रेष्ठ अगर यज्ञ करना है तो भगवान श्री कृष्ण का के लिए यज्ञ करना है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम नात्मा माम शांति मृच्छति। तो परम यज्ञ का परम लक्ष्य वासुदेव श्री कृष्ण है। वासुदेव परा योगा, अगर हमारा जो योगी प्रक्रिया से करते हैं तो भी भक्ति योग जो है वो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के लिए करना है। वासुदेव परा क्रिया है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया कोई भी कार्य वो परा है, वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर है। उसकी ऐसी क्रिया करनी है, मतलब वो भौतिक कर्म करता हुआ दिखाई देते हुए भी वो कर्मों से बंधता नहीं है वो जीव। जैसे कि एक पुजारी अपने हृदय से अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा भगवान विष्णु की अर्च विग्रह की सेवा करता है। कोई एक साधक अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है जपमाला से, तो वो उनके हृदय में ये भाव है कि मैं मेरी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगने के लिए मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ। तो ऐसे सभी जीव जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो एक दृष्टि से देखो तो हम चैंटिंग करते हैं, वो भी एक क्रिया है, लेकिन वो क्रिया कौन सी है? वो आध्यात्मिक स्तर पर है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो भौतिक फल लेकर नहीं आती है। और जो भौतिक फल से हम छूट जाते हैं तो ऑटोमेटिक आध्यात्मिक फल प्राप्त होने लगता है, और आध्यात्मिक फल प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक जगत में जाना होता है। और जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहां जाकर कोई भी जीव वापस नहीं आता। तो हम जब कर्म की दृष्टि से देखें तो भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हैं। तो ये भौतिक जगत से दूसरे सामान्य लोगों की दृष्टि से या बॉडी कॉन्शियस के प्लेटफॉर्म पे देखे तो ये भी एक कर्म है, क्योंकि पृथ्वी ये शरीर का साधन का, भौतिक साधन का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उससे वो उपयोग से हम तुरंत भगवान का नाम पुकारते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पे चले जाते हैं। वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव परम ज्ञानम, कि ब्रह्मा जी ने भी स्तुति में कहा है, हर एक श्लोक के पीछे कहा है कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण की जो पोजीशन है वो सुत गोस्वामी शौनक ऋषि गण के हृदय में और हमारे जैसे जीवों के हृदय में स्थापित कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण, वी ऑल बिलोंग टू श्री कृष्ण,
और भगवान श्री कृष्ण ही हमारा अल्टीमेट नियंता है। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवम परम तपः। अगर हमारा कोई भी तप करने का जो फल है तो वो तप भी भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि हमें कभी कभी संसारी लोग पूछते हैं सोमवार कर सकते हैं, रविवार कर सकते हैं या कड़वा चौथ कर सकते हैं, तो उनके लिए ये जवाब है वासुदेव परम तपः। अगर हमें तप करना है तो एकादशी, कल एकादशी आ रही है तो एकादशी का तप करना चाहिए, क्योंकि एकादशी वो विष्णु तिथि है। अगर हमारा जो तप है जन्माष्टमी के लिए होना चाहिए, रामनवमी के लिए होना चाहिए, राधाष्टमी के लिए होना चाहिए, नरसिंह चतुर्दशी के लिए होना चाहिए और सभी 12 महीने की एकादशी के लिए होना चाहिए, तो हम विष्णु के लिए तप कर रहे हैं। और इस जगत के अंदर अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 16 माला करते हैं तो वो 16 माला भी एक तप है। हम भौतिक चीजों से विलगाव करके हम आध्यात्मिक जगत से जुड़ने के लिए वो तप कर रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ तप है इस जगत का कि हरे कृष्ण महामंत्र। तो वासुदेवम परम तपः। हमें तप अगर करना है तो भी वासुदेव के लिए करना है। इसके अलावा कोई भी तप किया गया या वासुदेव के साथ मिश्रित और भी कोई हेतु है तो वो तप अल्प बुद्धि वाला माना जाएगा। आराधितो हरि परम ततः तपसा किम, न आराधितो हरि परम ततः तपसा किम, अंतर बहिर यदि हरीश ततः तपसा किम, न अंतर बहिर यदि हरीश ततः तपसा किम। आराधितो हरि परम ततः तपसा किम। अगर हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो तप करने की क्या आवश्यकता है। तप यानी कि वो एक प्रेम का क्या बोलते हैं, प्रेम का एक बिंदु है कि जिनके प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को भूल जाते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, उसको दूसरे शब्द में हम तप कह सकते हैं। तो आराधितो हरि परम, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो तप करने की क्या आवश्यकता। अगर तप करते हैं तो भगवान विष्णु की तप या कृष्ण की लिए तप करना चाहिए। तो आराधितो हरि परम ततः तपसा किम, न आराधितो हरि परम ततः तपसा किम। अगर हम भगवान विष्णु की आराधना के लिए तप नहीं करते तो वो तप का क्या फायदा। वो तप का कोई फायदा नहीं है, वो भौतिक जगत में फंसाएगा। अंतर बहिर यदि हरीश ततः तपसा किम। अगर हमारे अंतर में, हृदय में भगवान है उसके लिए हम जागृत है और बाहर भी हम भगवान विष्णु का, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं हृदय में और मन में, और बाहर दिव्य चमड़े की चक्षु से भी हमें कृष्ण दिखाई देता है चारों तरफ, तो ततः तपसा की। तो फिर तपस्या की जरूरत क्या है, क्योंकि तब तो हमें सेवा करनी चाहिए। अंतर बहिर यदि हरीश ततः तपसा की, न अंतर बहिर यदि हरीश ततः तपसा की। अगर हमारे हृदय में भगवान कृष्ण को नहीं देख पाते, अगर हम बाहर सृष्टि के जगत में भगवान को नहीं देख पाते तो तपस्या करने की क्या आराधना है। तपस्या का मतलब है कि हम अगर करनी है तो भगवान विष्णु के लिए करनी है, नहीं तो तपस्या का मतलब हमारा हृदय। गुरु महाराज आचार्यगण समझाते हैं कि हमें तपस्या करनी चाहिए क्योंकि पावनानि मनीषिणाम, वो जीव को पावन करने वाला है, पवित्र करने वाला है। तपस्या का फल है पवित्रता, लेकिन वो पवित्रता भगवान से नजदीक ले जाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए है। अगर वो पवित्रता के पीछे हम अपने आप को केंद्रित करेंगे तो फिर भी अहम ममेति जुड़ जाएगा। तो तपस्या एक पोजीशन नहीं है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम। हमें तपस्वी नहीं बनना है, लेकिन हमारी तपस्या ऐसी हो कि हम भगवान की सेवा करते करते अपने आप को भूल जाएं, तो वो तपस्या है, वो प्रेम भक्ति है। जैसे षड गोस्वामी गण भगवान की सेवा पूजा करते थे तो वो भगवान की सेवा पूजा 2-2, 3-3 दिन तक भगवान की सेवा करते थे, तो वो पानी पीना तक भूल जाते थे। तो उसको कहते हैं तप। तप का मतलब है अगर तप करना है तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम कोई तप करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा हृदय कठोर होगा। पर कठोर हृदय में जो स्पंदन हृदय चाहिए भगवान की भक्ति के लिए,
और कठोर हृदय में भगवान के स्पंदन, भगवान का उपदेश हम समझ नहीं पाएंगे। और कठोर हृदय हमें अनबैलेंस लाइफ की ओर ले जाएगा। हमें कहाँ जाना है? बैलेंस लाइफ की, हम इक्विलिब्रियम की ओर जाना है। तो तपस्या करनी जरूरी है, तपस्या पवित्र करती है और भगवान के पास भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है। तो तपस्या का मतलब ये नहीं है कि खाली तप करके हम भगवान मिल जाएंगे। तब न हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न चेतया, हमें वेदों के द्वारा ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये सभी चीज हमें करनी है किसके लिए? वासुदेव के लिए, श्री कृष्ण के लिए। वासुदेव परो धर्मो, हमारा जीवन का, मनुष्य जीवन का परम ध्येय, परम धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, भगवान कहते हैं गीता में। तो वासुदेव परो धर्मो, तो वो परम धर्म है। और अपरा भक्ति की बात नहीं है। अपरा भक्ति भौतिक जगत में है, जो देवी देवता द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वो क्षणिक है, तुच्छ है और जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली नहीं है। और उसको भक्ति नहीं कह सकते, उसको सकाम कर्म कहते हैं। और वासुदेव परागति ही, और हमारी गति भगवान श्री कृष्ण की ओर हो। तो अभी इस श्लोक के अंतर्गत सूत गोस्वामी ने ये बता दिया, ये 2 श्लोक के अंतर्गत 28 और 29, ये दोनों श्लोक में ये स्थापित कर दिया कि जीव के लिए परम श्रेष्ठ अल्टीमेट श्रेय क्या है। हम गीता के अंदर समझ रहे, भगवत गीता के अंदर समझ रहे श्रेय और प्रिय के बीच में भेद क्या है, और श्रेय के और प्रिय के बीच में भेद से प्रिय को कैसे छोड़ना है और श्रेय को कैसे प्राप्त करना है। और यहाँ पे श्रेय में सर्वश्रेय यानी सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है, उसके लिए फाइन ट्यूनिंग हो रही है। तो सूत गोस्वामी जो है हमें बता रहे हैं कि जीव के लिए जो अल्टीमेट ध्येय है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। यानी कि कभी भी अगर हम हमारे जीवन में कभी भी हम प्रीचिंग करते हैं, दूसरे जीवों को कल्याण के लिए बताते हैं, तो हमें ये श्रीमद् भागवत के ये 2 श्लोक को बताना चाहिए। कौन से? वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। इसके द्वारा हम क्या कहते हैं कि जैसे 11वें अध्याय में गीता में बताता है कि नारद, असित, देवल, व्यास, ये सभी ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में घोषित किया। तो उन्होंने उस समय अर्जुन ने ये प्रमाण दिया था, नारद, असित, देवल, व्यास, तो ऐसे ऋषिगण जो है जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो हमें मार्ग दे सकते हैं कि कैसे भगवान की प्राप्ति हो। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, और सभी शास्त्रों में छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी शास्त्रों का सार वेद व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। और श्रीमद् भागवत में फिर हम सुखदेव गोस्वामी और सुत गोस्वामी के सानिध्य में, और सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज और सुत गोस्वामी के सानिध्य में अभी शौनक ऋषिगण के जो दिव्य प्रश्न है, वो दिव्य प्रश्न के अंदर हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं कि हम, हमारे लिए एक अटल हृदय में फेथ हो जाएगा कि नो वन इज इक्वल और अबव कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण से बराबर ऊपर और ऊपर कोई नहीं है। असम उद्व मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा है। तो अल्टीमेट हमारे हृदय में जो एक, कई बार कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कई भक्तगण कहते हैं कि नहीं इनकी भी आराधना करनी चाहिए, देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो वो क्या बोलते हैं कि कोपायमान हो जाएंगे, और कोपायमान हो जाएंगे तो हमें श्राप मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत स्पष्ट बात बताई कि सभी नक्षत्र
देवता सभी भगवान कृष्ण के आदेश में चलते हैं। मैया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। तो सभी ग्रह नक्षत्र ये भगवान श्री कृष्ण के आदेश से चलते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण मूल है, वो मूल की सेवा पूजा करने से ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बल्कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ग्रह नक्षत्र का अपमान करें। हमें उनको आदर देना है, उनको स्वीकारना नहीं है, मतलब उनकी पूजा नहीं करनी है। हमें कोई भौतिक लाभ उनसे प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर चेष्टा करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में से बाहर निकलना है तो हमें वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, दो तीन श्लोक पहले सुत गोस्वामी ने कहा था कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर। देखिए, वो भगवान विष्णु की सर्वश्रेष्ठता बताई। उस दरमियान भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें फाइन ट्यूनिंग कहा गया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण से भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। और उसके अंतर्गत अभी वही बात जो प्रभुपाद जी ने स्थापित की थी, उसके तात्पर्य में वही बात अभी सुत गोस्वामी द्वारा स्थापित की जा रही है कि इवन भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण से आते हैं। इसलिए हमें अल्टीमेट विष्णु और कृष्ण की तुलना करनी है तो हमें शुद्ध भक्ति भगवान कृष्ण के लिए करनी चाहिए। हम भगवान विष्णु को आदर सम्मान करें, भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारी प्रेम भक्ति जो है अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की यानी कि इसके अलावा भगवान की प्रसन्नता के अलावा हमारा और कोई हेतु नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता, और वो सतत होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड। तो वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए कहा है नित्यम भागवत सेवा। अगर हम नित्यम भागवत का सेवन करेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान है। देर आर टू भागवत, पर्सन भागवत और बुक भागवत। तो जैसे आचार्य गण प्रभुपाद और आचार्य गण जो है वो पर्सन भागवत है, और हम सब बुक भागवत से पर्सन भागवत को पर्सन भागवत के द्वारा समझाए गए तात्पर्य से हम ओरिजिनल भागवत जो बुक भागवत है वो भागवत को समझते हैं। तो बुक भागवत कहता है कि जो पर्सन भागवत है वो सर्वश्रेष्ठ है। कई बार नए लोगों को संशय होता है कि हम तो श्रीमद् भागवत को आदर देंगे लेकिन वक्ता को आदर नहीं देंगे, यानी कि वक्ता यानी कि प्रभुपाद जी को आदर नहीं देंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि श्रीमद् भागवत का हृदय ऋषि मुनि गण है, जो जिन्होंने इनके द्वारा अपना जीवन का ध्येय हासिल किया। यानी कि ओरिजिनल भागवत भी पर्सन भागवत के अंदर छुपा हुआ है। तो पर्सन भागवत, इसीलिए हमें जो शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा और गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। क्योंकि गुरु के आदेश के अंदर गुरु का और प्रभुपाद जी का द्वारा दिया गया एक क्या बोलते हैं, एक दिशा है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला करनी चाहिए, और वही मापदंड 4 नियमों के पालन के साथ अपने गुरु ने हमें दिया है। तो गुरु का जो वचन है उसके अंदर भगवत प्राप्ति छुपी हुई है। हम साधना भक्ति करते हैं तो साधना भक्ति का हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना। लेकिन सिर्फ मुक्ति अगर मुक्ति के लिए करेंगे तो फिर भी मुक्ति हमारे लिए होती है। हम शरीर बंधन के लिए हम मुक्ति का उपयोग करेंगे और महामंत्र का उपयोग करेंगे तो हम मुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। मुक्ति तो उसके पीछे जाएगी, जो महामंत्र का जप करता है तो मुक्ति उसके पीछे जाएगी। तो उनको मुक्ति के लिए आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कीर्तनी मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। क्योंकि जो भगवान का भक्त है अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता, अपने आप को तुच्छ समझता है। कैसे? क्योंकि उन्होंने आत्मदर्शन किया है, उन्होंने देखा है कि इनके अंदर कैसे वो प्रकृति के 3 गुण द्वारा वो शिकार बन जाता है बारंबार। जैसे भगवान को भूल जाता है
तुरंत प्रकृति के 3 गुणों का शिकार बन जाता है। तो ऐसी कश्मकश परिस्थिति से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। तो आज का ये श्रीमद् भागवत जो है, इसको, इस कक्षा को मैं विराम दे रहा हूं कि जीवन का अल्टीमेट ध्येय क्या है। तो अल्टीमेट ध्येय स्थापित किया है इस 2 श्लोक के द्वारा सुत गोस्वामी द्वारा। तो ये प्रमाण हमें प्रभुपाद जी द्वारा, गुरु महाराज द्वारा, प्रभुपाद जी द्वारा, उसके साथ साथ शौनक ऋषिगण और सुत गोस्वामी द्वारा, उनके साथ साथ शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज द्वारा, उसके साथ साथ वेद व्यास जी द्वारा ये प्रमाण हमें मिल चुका है कि जिन्होंने इस प्रमाण के आधार पे अपने जीव का कल्याण किया था। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो उनको तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो इस शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, वो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे धाम में वापस आता है। तो वही बात इस श्लोक के अंदर हम समझ सकते हैं कि जैसे शौनक ऋषिगण, सुत गोस्वामी ने हमें यही बात बताई है। ये सब बार बार एक बात बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं ऐसा समझेंगे तो हमारे अंदर जो भगवान श्री कृष्ण की अविचल अनफ्लिंचिंग भक्ति जो स्थापित करनी है हमारे हृदय में, कि कृष्ण के अलावा मेरे हृदय में और कोई नहीं रह सकता, वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो जो संशय ग्रस्त होता है कि देवी देवता की इच्छाओं वाले होते हैं, या तो ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा वाले होते हैं, इवन भगवान विष्णु की भक्ति करने की इच्छा है, तो भी यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बताई गई कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो इसीलिए हमें महाजनो ये न गतस्स पंथा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गतस्स पंथा। धर्म का तत्व बहुत गहरा है। महाजनों, जो 12 महाजन है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करके महाजनों ये न गतस्स पंथा, उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो रास्ते पे चलना, वो धर्म का अल्टीमेट प्रतीक है। आइए हम श्रीमद् भागवत की इस कक्षा को यहाँ समापन कर रहे हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यहाँ पे लास्ट श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं कि प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा ही पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। तो अभी किसी भक्त को भगवान श्री कृष्ण के पीछे, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर नहीं है या इसके साथ और भी कोई है, तो ऐसा कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। दंडवत प्रणाम। तो इस भागवत कक्षा को यहाँ विराम दे रहे हैं। इस कक्षा में जो भी सुकृति है ये मेरे गुरु महाराज ही होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के को मैं अर्पित करता हूँ। इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि क्षति रह गई है श्लोक के उच्चारण में या कहीं भी, तो मेरी अपनी है गलती, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय।